Hello students, welcome to English class plus 2. I am your English teacher. I hope you all are fine at home. So today we will do our second poem, that is An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. Stephen Spender was an English poet, novelist who concentrated on the theme of social injustice and the class struggle in his work. In this poem, the poet is talking about the social inequalities against the children in the slum. So let's start our poem. Far, far from gusty waves, these children faces like rootless weeds, the hair torn around their pillow. Gusty waves means here energetic, weeds means unwanted plant, and pillow means pale appearance. The poet here wants to say that these children faces are far from energy. The term gusty waves means energetic, but it is missing from the faces of these children. And the term weeds means unwanted plants. जिस तरह से weeds किसी भी पौधे लगे गमले के लिए unwanted होती हैं, similarly these slum children are unwanted by the society and not belonging to the society. Pale means pale appearance. Their uncombed hair falls on their pale faces. यानी उनके बिखरे हुए बाल जो हैं वो उनके चेहरे पर आ रहे हैं और उनका चेहरे की जो अपीयरेंस है वो कैसी है, पेल है. That appearance only comes when you are sick or malnourished. The poet here gives the description of some children, and the first is tall girl. The tall girl with her weighed down head, the paper simming boy with rat's eyes. First description of children and second description of children, paper simming boy. So the first is tall girl. The poet here wants to say that क्लास में एक लंबी सी लड़की बैठी है, बट उसका जो फेस है, उसका जो सिर है वो झुका हुआ है. अब वो झुका क्यों हुआ है? देयर माइट बी टू रीज़न. द फर्स्ट इज़ शी माइट बी फीलिंग स्लीपी एंड सेकेंड इज़ मे बी आउट ऑफ पॉवर्टी एंड बाय द बर्डन्स ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट द पोएट गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ पेपर सिमिंग बॉय. Now why the poet here calls that boy paper simming? We all know how paper looks like. बहुत पतला होता है, right? Similarly, that boy is very weak and thin with rat's eyes. Rat's eyes means his eyes might be searching food like rat's eyes do. जिस तरह से चूहे की आंखें अपने फूड को सर्च करती हैं, उसी तरह से इस पेपर सिमिंग बॉय की जो आंखें हैं वो भी किसी चीज़ को सर्च कर रही हैं. थर्ड डिस्क्रिप्शन, द स्टंटेड अनलकी हेयर. हेयर मीन्स वारिस एंड स्टंटेड मीन्स एबनॉर्मल ग्रोथ, यानी जिसकी ग्रोथ ना हुई हो. एंड हेयर वारिस को कहा जाता है. ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, यानी किस चीज़ का वारिस है ये थर्ड चिल्ड्रन जिसकी डिस्क्रिप्शन दी है पोइट ने, ट्विस्टेड बोन्स का, यानी उसको जो इनहेरिट हुआ है चीज़ वो है ट्विस्टेड बोन्स, यानी मुड़ी हुई हड्डियाँ. रीसाइटिंग अ फादर नाल डिसीज़ हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. एंड वो अपने डेस्क से किस चीज़ को रीसाइट कर रहा है, उसको जो उसके फादर से डिसीज़ मिला है. कौन सा डिसीज़? नाल डिसीज़, यानी हड्डियों का रोग. तो पोएट हियर वांट्स टू से दैट बॉय इनहेरिट फ्रॉम हिज फादर ट्विस्टेड बोन्स एंड फ्रॉम हिज डेस्क he is doing nothing but reciting what he has inherited from his father, and that is gnarled disease. नाल डिसीज़ मैंने पहले बताया कि हड्डियों के रोग को कहा जाता है. एंड रीसाइटिंग का यहाँ पे मीनिंग है कि वो बच्चा जो है अपने डेस्क पे बैठा हुआ किसी चीज़ को अपने माइंड में बार बार याद कर रहा है. और वो क्या याद कर रहा है कि उसे क्या इनहेरिट हुआ है? फादर नाल्ड डिसीज़. एंड ही इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन हिज प्रेजेंट क्लास लेसन. वो इन चीज़ों को बस रिसाइट किए जा रहा है अपने माइंड में. Then comes the next description of another children. At back of the dim glass, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. The poet further says that there is one child at the back of the dim glass. Here dim class means the future of this class is far from being bright. It is uncertain, कोई certainty नहीं है उसमें. And this boy who is younger than the others, but उसे कोई notice नहीं करता. His eyes are full of hope and he is dreaming about playing games in the open.
और उस रियलिटी के बारे में सोचता है जो स्लम लाइफ से डिफरेंट होती है। वो स्क्विरल गेम के बारे में भी सोचता है जो ट्री रूम में खेली जाती हैं। अब पोइट यहाँ कंपैरिजन करते हैं दैट ट्री रूम इज़ बिग एंड चिल्ड्रन कैन प्ले हेयर, not in a tree room, but tree room here means the area which is outside of slum. It has new opportunities, so that boy wants to be in that tree room other than this means this present classroom in a slum. So let's move to the second stanza. On sour cream walls donations, Shakespeare had cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, belled flowery Tyrol's valley. अब पोइट यहाँ पे ये कहते हैं कि उस क्लासरूम की जो वॉल्स हैं उसका कलर कैसा है, सॉर क्रीम कलर है। सॉर क्रीम सजेस्ट करता है उस कलर को जो कि फेड हो चुका है। इस क्लासरूम का जो कलर था, वॉल्स का जो कलर था वो कभी वाइट हुआ करता था, बट अब उन वॉल्स का कलर क्या हो गया है, सॉर कलर हो गया है, यानी कि पेंट की जो लेयर थी वो उतर चुकी है और ऐसा लगता है मानो दैट क्लासरूम हैव नॉट बीन पेंटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सॉर क्रीम कलर ऑल्सो सजेस्ट दैट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द लाइफ्स ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्लम स्कूल। अब उस वॉल्स पे क्या है, उस वॉल्स पे डोनेशन है। सो फर्स्ट डोनेशन कौन सी है, शेक्सपियर हेड, यानी एक ऐसा पोर्ट्रेट लगा हुआ है जिस पे शेक्सपियर के हेड तक की पिक्चर है। नेक्स्ट क्या है उसमें, क्लाउडलेस एट डॉन, यानी एक ऐसी सीनरी लगी हुई है जिसमें क्लियर स्काई दिख रही है एट द टाइम ऑफ सनराइज। फिर क्या दिखता है उस पे वॉल पे, सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटी। सिविलाइज डोम मीन्स रॉयल पैलेस, राइडिंग ऑल सिटीज़ मीन्स कि पूरे के पूरे शहर में ऐसे ही सिविलाइज डोम बने हुए हैं, ऐसी सीनरी वॉल पे लगी हुई है। बेल्ड फ्लावरी टैरोल्स वैली, टैरोल्स वैली विक्टोरिया का एक प्लेस है। और क्या है, ओपन हैंडेड मैप है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ओपन हैंडेड मैप दैट शोज़ द वर्ल्ड टू एक्सप्लोर, एक ऐसा मैप है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं और वो ये सजेस्ट करता है कि उन जगहों को जाके एक्सप्लोर करना चाहिए, कुछ एडवेंचर करना चाहिए, राइट। बट द वर्ल्ड ऑफ स्लम चिल्ड्रन इज़ लिमिटेड, उनका वर्ड तो वही है जो उनको स्लम क्लासरूम के विंडोज़ के बाहर दिखता है, दैट कैन बी सीन थ्रू द विंडोज़ ऑफ क्लासरूम, वो नहीं जो मैप दिखाता है। So the poet here adds that the world for these children are their windows, not map. Means most of the slums are nearby the industrial areas. और उनमें से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, right? Where all their future painted with a fog. तो धुआं निकलने के कारण उनका जो स्काई होता है जो ब्लू कलर का होता है यूजुअली, बट वो कैसा हो जाता है, लेड कलर का हो जाता है। A narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, caves and stars of word. Stars of word means education. Students, we usually talk to each other and say that हम आसमान छुएंगे means सक्सेस हासिल करेंगे। सो यहाँ स्काई लेड कलर होने का मतलब है their future is uncertain and dark. स्काई बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर का था, लेड कलर का था, तो उनका फ्यूचर भी कैसा था, डार्क था, यही शो होता है यहाँ। एंड देयर लाइफ इज़ विद इन द नैरो स्ट्रीट, उनकी लाइफ क्या थी, नैरो स्ट्रीट के अंदर ही थी। ऑफ द स्लम मीन्स फार अवे फ्रॉम द ओपन स्काई, फार अवे फ्रॉम द रिवर, फार अवे फ्रॉम द केव्स एंड द स्टार्स ऑफ वर्ड। स्टार्स ऑफ वर्ड मैंने पहले भी बताया, एजुकेशन। द पोएट सेज दैट these children are far from stars of words as they are unable to get the knowledge of words properly, यानी वो किसी अच्छे स्कूल में जाके शिक्षा पढ़ाई नहीं कर पाते थे। Let's move to the third stanza. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slowly turn in their cramped holes from fog to endless night.
So now the third stanza, poet turns here aggressive and feels that Shakespeare is wicked. पोइट कहता है कि इन चिल्ड्रन के लिए शेक्सपियर के पोर्ट्रेट का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द राइटिंग ऑफ शेक्सपियर इंक्लूड्स अबाउट रॉयल किंग, ऑल दीज थिंग्स, राइट, बट हेयर दीज आर ऑफ नो यूज़. पोइट कहता है ऐसा लगता है जैसे पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर उन स्लम चिल्ड्रन की सिचुएशन को मॉक कर रहा हो, कि उन पे हंस रहा हो. दैट्स वाई पोइट उसे विक्ड कहता है, बहुत ही एग्रेसिव टोन में. एंड मैप अ बैड एग्जाम्पल. पोइट ये भी कहता है कि मैप शोज दैम अ ब्यूटिफुल वर्ड ऑफ शिप्स, सन एंड लव विच इज़ अनरियल टू स्लम चिल्ड्रन. स्लम चिल्ड्रन के लिए इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, बट दीज आर टेम्पटिंग देम. टेम्पटिंग देम मीन्स अट्रैक्टिंग देम. अट्रैक्ट कर रहे हैं उन स्लम चिल्ड्रन को इमोरली, दैट दे ट्राई टू स्टील दीज थिंग्स एंड एस्केप इन टू देयर क्रैम्प्ड होल. क्रैम्प्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या है? नैरो, यानी बहुत ही जो उनके स्लम चिल्ड्रन की जो रहने की जगह है उनको होल कहा गया है और उनको क्रैम्प्ड कहा गया है, कि यानी वो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी जगह है रहने की. एंड स्लली मीन्स सीक्रेटली, फॉर लिव्स दैट स्लोली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल. और वो सीक्रेटली इन सारी चीज़ों को चुरा कर कहाँ चले जाएंगे? अपने क्रैम्प्ड होल में चले जाएंगे. तो पोएट कहता है कि शेक्सपियर के पोर्ट्रेट का उस क्लासरूम की वॉल पे होने का कोई मतलब नहीं है, और मैप एक बैड एग्जाम्पल है उनके लिए, क्योंकि मैप उन्हें क्या दिखा रहा है? शिप्स दिखा रहा है, सन दिखा रहा है, और उन्हें किसी तरह से अट्रैक्ट कर रहा है, टेम्प्ट कर रहा है कि वो इन सारी चीज़ों को स्टील करने की कोशिश करें और फिर सीक्रेटली अपने क्रैम्प्ड होल्स में चले जाएं. फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, their future is foggy and uncertain, right? There is only one certainty, that is the endless night of their death. Means उनका birth, life and death सब darkness से घिर चुका है. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottles bits on stone. स्लैग का मीन्स होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हीप का मीनिंग होता है ढेर. एंड दिस टर्म हेयर यूज टू इंडिकेट द वीक बॉडीज ऑफ स्लम चिल्ड्रन. एज वी ऑल नो दैट वेस्ट इज यूजलेस. सिमिलरली द बॉडीज ऑफ स्लम चिल्ड्रन आर ऑल्सो यूजलेस because of weakness and several diseases. They can hardly serve any purpose in life. Due to poor eyesight, they wear spectacles, but of mended glasses. यानी उनकी आँखों की रोशनी कमज़ोर तो है, उनकी आईसाइट पुअर तो है, और वो ग्लासेस भी पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स भी पहनते हैं, बट मेंडेड किए हुए. यानी कुछ रिच पीपल ने अगर उन ग्लासेस को टूटे होने की वजह से, स्पेक्टिकल्स को टूटे होने की वजह से फेंक दिया है, तो वो उसको उठा के उसको मेंड करते हैं और फिर उसको वियर कर लेते हैं. लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, कि जिस तरह से स्टोन पे बॉटल को गिराया जाता है और वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उसी तरह से किसी के पुराने स्पेक्टिकल्स को मेंड करके उन्होंने पहना हुआ है, बट उसको मेंड करने में, उसको जोड़ने में जिस जिस चीज़ का यूज़ हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली दिख रहे हैं. मीन्स द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दीज स्लम चिल्ड्रन आर अनसर्टेन. ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम. यानी उनका प्रेजेंट, उनका फ्यूचर दोनों ही क्या हैं? अनसर्टेन हैं. सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम. अब यहाँ पे सिमिली लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है, एज यूज़ हुआ है ना यहाँ पर. तो पोइट कहता है कि उन स्लम चिल्ड्रन का जो प्रेजेंट है, जो फ्यूचर है, वो क्या है? अनसर्टेन है. एंड दे जस्ट गो ऑन लिविंग विदाउट होप, विदाउट purpose. So that's why poet calls their time as foggy. As big as doom, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है? सिमिली का. Doom means death. The poet says that slum is itself a reason of death. If shown in the map, कि अगर इसको मैप पे दिखाया जाए, it will be just a blot on the map, कि मैप पर ये क्या होगी? सिर्फ एक ब्लॉट ही होगी,
सिर्फ ये धब्बा ही होगा, राइट। सो नाउ मूव टू द लास्ट स्टैंजा। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Break, oh break, open till they break the town, and show the children to green fields, and make their world run azure on gold sands. And let their tongue run naked into books, the white and green leaves. Open history theirs whose language is the sun. History theirs whose language is the sun. Last line is very important. The poet appeals here in this stanza and he is urging to the governor, inspector and visitor. अब इस स्टैंजा में जो पोइट है वो अर्जिंग कर रहा है। थर्ड स्टैंजा में पोइट क्या कर रहा था, एग्रेसिव टोन में आ गया था, राइट, गुस्से में था। अब इस स्टैंजा में पोइट क्या कर रहा है, अर्जिंग कर रहा है, किस किस से, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, इन सब से अर्ज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है टू डू समथिंग to improve the condition of these children. Governor, inspector, visitor are important and powerful persons in the modern times, right? They can bridge the gap between rich and the ugly world of the slum. These windows have stunted their growth. इन विंडोज़ ने क्या किया है, कुछ नहीं, उनकी ग्रोथ को स्टंट कर दिया, cramped their lives. द पोएट हेयर अर्जिज कि इस मैप को उन चिल्ड्रन की विंडो बना दो, मीन्स उन्हें भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं. इफ़ दीज मैप लाइक विंडोज़ आर नॉट देयर, द लाइफ ऑफ द स्लम पीपल विल बिकम एज इफ़ दे आर लिविंग इन अंडरग्राउंड ग्रेव यार्ड्स. कैटाकॉम्ब क्या होते हैं, अंडरग्राउंड ग्रेव यार्ड्स, यानी धरती के नीचे कुछ विंडोज़ टाइप बनाया जाता है एंड वहाँ पे डेड बॉडी को डाल के उसको बंद किया जाता है, उसको कहते हैं कैटाकॉम्ब्स. ब्रेक और ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन. द पोएट हियर सेज दैट दे शुड ब्रेक ऑल द बैरियर्स, कि उन्हें दे मीन्स कि जो गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं, विजिटर हैं, उनको वो बैरियर ब्रेक कर देने चाहिए. एंड ऑब्स्टेकल, उन बाधाओं को हटा देना चाहिए. दैट कीप अवे ट्रू एजुकेशन फ्रॉम देम, जो उनसे इस सच्ची शिक्षा को जो हैं छुपा रही हैं. दीज चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन फ्रीडम टू एक्सपीरियंस. इन चिल्ड्रन को इतनी फ्रीडम दी जानी चाहिए कि वो ग्रीन फील्ड में जा सकें और अपना फ्यूचर बना सकें. पोएट हियर बेग्स टू द अथॉरिटी दैट इफ़ दे लिव फ्रीली, कि अगर वो फ्रीली जीते हैं, उन पे कोई बैरियर नहीं लगाया जाता, एंड गेट एजुकेशन, दे कैन चेंज देयर लाइफ, कि उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं. द पोएट ऑल्सो बेग्स टू लेट देम रीड बुक्स, कि उन्हें बुक्स को भी रीड करने दो. एंड फॉर्म देयर ओपिनियन, उन्हें अपने ओपिनियन बनाने दो, यानी उनकी लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, उन्हें बुक्स पढ़ने दो और उनकी टंग्स यानी उन्हें बोलने से रोको मत. फॉर्म देयर ओपिनियन, अपने ओपिनियन बनाने दो. एंड लेट देम डिस्कवर देमसेल्फ, और अपने आप को डिस्कवर करने दो. एंड लेट देम बी क्रिएटिव, और क्रिएटिव बनने दो, सो दैट देयर नेम्स कैन ऑल्सो एंटर द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके नेम भी हिस्ट्री की बुक्स में आ जाएंगे, राइट. सो पोएट कंक्लूड करता है यहाँ पे पोएम को विद दिस ब्यूटीफुल मेटाफोर. लास्ट लाइन, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन. तो यहाँ पे पोएट कहता है कि वर्ल्ड इज़ नॉट रूल्ड बाय डम्ब, कि जो गूंगे होते हैं वो नहीं वर्ल्ड को रूल करते. ओनली दोज हु स्पीक विद कॉन्फिडेंस, जो आगे बढ़ के कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, आर हर्ड, सिर्फ उन्हीं को सुना जाता है. एंड देयर लैंग्वेज मस्ट हैव द वार्मथ एंड पावर ऑफ द सन. सो this is your poem. I hope you all understood. So that's all for this video lecture. Thank you so much.